कंग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल, ज़ीरो से लेकर आज 10वां एडिशन है, 10वां संस्करण है। आप बताइए कि कैसा महसूस कर रहे हैं और हाउ डिड यू पुट इट अप, कैसे आपने तैयारी की पूरी साल? एक्चुअली जैसे एक पौधा लगा और उसका एक पेड़ के रूप में एक रूपांतर होता है और उसको बहुत अच्छे फल मिलते हैं, तो वही आज महसूस हो रहा है कि आज 10वां साल है। देखते देखते 10 साल हो गए और 10 साल हो गए और उसके जो फल है लाइक वो आर्टिस्ट के स्वरूप में हमें बहुत अच्छे अच्छे काम दे रहे हैं और ये ऐसा ही चाहिए कि लगातार ये बढ़े और आगे और भी आर्टिस्ट जुड़े और भी लोग जुड़े और इसका आनंद सबको दें। और सर हर बार आप एक कॉज को सपोर्ट करते हैं, इस बार ये कॉज पुलिस वेलफेयर से लेकर है, ये आइडिया कहाँ से आया? और क्योंकि अधिकतर लोग अलग अलग तरीके के कॉजेज़ को लेते हैं, ये आपके दिमाग में कहाँ से आया है, ये जहन में कैसे आई ये बात आपको? एक्चुअली बहुत सहयोग का एक यही रहा है कि हर एक अलग अलग इनके साथ जुड़ने के बाद कि हमें लगा कि मुंबई पुलिस के लिए भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि वो सबके लिए करते हैं। हम जब खुश रहते हैं, जब हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते रहते हैं, लेकिन वो अपनी ड्यूटी निभाते रहते हैं। तो मैंने देखा कि ज़रूर उनमें भी कोई ना कोई आर्टिस्ट तो छुपा होगा, उनमें कोई ना कोई कला छुपी होगी, तो उनमें से उनको बाहर लाना या वो लोगों तक पहुंचाना ये हमारी जिम्मेदारी है। तो इसीलिए ये सोचा था कि 10वां साल जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को साथ में लेके ही हम बिल्कुल सब, बस यही प्रार्थना है, ये कारवां चलता रहे और बड़ा होता जाए। थैंक यू सो मच फॉर पुटिंग अप। I'm Shailaja Kaman. I'm a contemporary artist associated with Sayog since last 3-4 years, and Mr. Satyendra Rane is my mentor. If he would not have been there, I would not have been standing here on this platform today. He is the main source for my art years, and yes, I have improved a lot, I can say, with his guidance in this last 4 years. And my passion is for all the types of media like oil paint, water paint, and then charcoal as well as pencil shading, everything. But I like water painting and acrylic the best. And my main attraction is towards the cityscape. Means I like to draw the cityscapes with the observation at villages and different cities, and then my passion is like dome-like structures like machines, and that I like them to draw very much. So today also I have shown that type of structures in my 2 paintings, which I am very happy about it. And so thank you very much for giving me this platform again. Hello Nidhi ma'am, it's a pleasure to have you here. Having looked at your beautiful artworks, they're just phenomenal. How was your experience of collaborating with Satyendra Rane? It is indeed an honor to participate in Sahyog 10.0, and this show is supporting Mumbai Police Welfare Association, and this was one of the reasons why I wanted to be associated with this noble cause. I learned that Sahyog over the last 10 years has been always supporting the cause of children, transgender, cancer patients. It's a very, very good idea, and I'm really happy to be a part of this show. There are other participants who are from police, law sector, judiciary, and it's a good thing that they are trying to balance their lives. What was the thought process behind the paintings? So my paintings, I have given 2 paintings. One is from Bhagavad Gita, in which Krishna explains the nature of cosmic tree, Urdhva Mula Madhu Shakham, a tree which has roots above and the branches below. And the other painting is inspired from the poetry of Rumi, which is a dancing dervish. Yeah. So these 2 paintings have been suggested here. This also speaks of the balance and the religious coexistence and the tolerance for different cultures and community, which I wanted to project through my works. Thank you ma'am, thank you for being here, thank you. Arpita sir, it's a pleasure to have you here. Tell me about your association with Satyendra Rane, the 10th edition of Sahyog, and your paintings. So I have been participating in Sahyog for nearly, I think, the last 7 years, and this is very special because this is the 10th year, and as ma'am was mentioning that
every year there have been causes that Sahyog has supported, and that's always been the structure that you kind of support a cause with art. And I think today was very unique and special because you had people from the judiciary, law, so these people, and I think to understand it's like every uniform, behind every uniform there's a human being and there's a human story, and it's those individual perceptions of art that they bring to the fore, and Sahyog is a great platform for the same. थैंक यू सो मच, स्मिता मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको और सत्येंद्र सर को. प्लीज़ टेक मी थ्रू द प्रोसेस. इनके रातों की नींद कैसे उड़ी, क्या था, क्या इनके मन में चल रहा था, एंड अपनी पेंटिंग्स के बारे में प्लीज़ आप मुझे बताइए. सहयोग का ये 10वां साल है और हमें बहुत खुशी हुई कि 10 साल हमने बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट किए हैं. 10 सालों में हर एक बार शो जब होता है तो बहुत एंजाइटी होती है, बहुत मेहनत होती है उसके पीछे. आज ये दिन देखने के लिए हमें 1 महीना लगातार इसके लिए काम करना पड़ता है. आर्टिस्ट चुनना, कॉज चुनना, सारा ये गैदरिंग करने के लिए भी हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है. इसमें बहुत एफर्ट्स लगते हैं. हम दोनों साथ में हमेशा उनके पीछे रहते हैं कि ये सब शो कैसे भी करके सक्सेसफुल होना चाहिए. यही हमारी कोशिश होती है. और आप अपनी पेंटिंग्स के बारे में बताइए जो इस साल आप लोगों ने इस साल मैंने जो किया है. पेंटिंग्स की वो इमोशंस के ऊपर है. हमारे इमोशंस में अप डाउन्स कैसे होते हैं, कोई ब्राइट इमोशंस होते हैं, कोई अलग होते हैं. इनका ओवरऑल एक मिक्सचर करके हम कैसे लाइफ में चलते हैं वो मैं कलर्स के थ्रू एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रही हूँ. थैंक यू सो मच मैम. और भी चलता रहे बस कारवां, ये कारवां चलता रहे, आगे बढ़ता रहे, यही हमारी दुआ है. यही हमारी भी दुआ है मैम. थैंक यू सो मच. हाँ, यहाँ देखना है, सेंटर देखना है. आपको अपना नाम बताना, पदवी बतानी है, और आर्ट से आपका रुझान कैसे रहा. काम आपका अलग है पर आर्ट मेरा नाम शैलेंद्र कालू गायकवाड़ है. मैं मुंबई में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस करके रिटायर हो गया. बाद मैं अभी एडवोकेट बॉम्बे हाई कोर्ट और थाना कोर्ट में एडवोकेट का प्रैक्टिसिंग कर रहा हूँ. ये ड्राइंग का जो मेरा हॉबी है ये बचपन से था. पहले के ज़माने में वो चांदोबाग करके कॉमिक्स आता था, कलर फूल है, वो देख के अब तभी मैं ड्राइंग करता था. वो हॉबी था. बाद में पुलिस में आने के बाद वो सब कम हो गया. जब भी मेरे को थोड़ा सा टाइम मिला तो मैं ड्राइंग करता था. अभी ये यहाँ पे मैंने वो 3 ड्राइंग किए. उसके पहले भी मैंने कुछ ड्राइंग किया है, पेंटिंग है. वो काला घोड़ा में हम एग्जिबिट करते थे. शिवानंद साहब ने और अरुण पट्टनायक साहब थे, उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट मुंबई पुलिस को बहुत प्रोत्साहन दिया था. तभी से काला घोड़ा में हमारा वो एग्जिबिट होता था. अभी यहाँ पे सत्येंद्र राणे करके साहब जो है उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट के ऐसे जो छोटे आर्टिस्ट है उनसे कांटेक्ट करके पेंटिंग बुला लिया और यहाँ पे एग्जिबिट किया. ये आनंद बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को. उन्होंने ये माहौल बनाया, ऐसा कभी अभी इतना बड़ा माहौल दिखा नहीं था. अभी यहाँ पे हमको अच्छा प्लेटफॉर्म मिलने के बाद हम और अच्छा पेंटिंग करेंगे और लोगों को प्रोत्साहित करेंगे. पेंटिंग करते जाओ. पेंटिंग से अपना स्ट्रेस कम होता है, अपना सेहत अच्छा रहता है. ये मैं आप सबको ये एग्जीबिशन के माध्यम से आपको बोल रहा हूँ. थैंक यू. धन्यवाद. शुभकामनाएं. अनंत धूपकर, पुलिस सब इंस्पेक्टर, रिटायर 1920 से. अभी फ़िलहाल मैंने पहले से हमें हॉबी पेंटिंग्स वगैरह करते थे. और इस डिपार्टमेंट में भर्ती होने के बाद वो हमारा टेक्निकल में जॉब था मेरा, वेपन वगैरह रिपेयर एडजस्टमेंट वगैरह. तो उसमें मुझे समय संडे वगैरह छुट्टी हो रही थी तो हम लोग आउटिंग के लिए जाते थे. संस्कार भारती करके शो है. तो वहाँ जाके एक संडे हम, क्योंकि पहले से हमें इसके शौक था, तो उधर जाके हमने आउटिंग में थोड़ा सा हमारा एक काम पुलिस टेक्निकल जॉब हमारा और ये आर्ट डिफरेंट. तो उसमें से हमें सेटिस्फेक्शन मिलता था संडे जाके. और वहाँ जाके
करके हमने फर्स्ट एग्जीबिशन मेरा शो हो गया हमारा आर पाटिल जब कमिश्नर थे, तो मैंने और जितने सारे पेंटिंग किए थे हम लोग, तो उनका शो मेरा फर्स्ट 1994 में हमारा शो हो गया। आर पाटिल आए थे, कमिश्नर रॉय साहब थे, तो उन्होंने हमें प्रोत्साहन, उसके बाद हमें अपने शिवानंद कमिश्नर साहब थे, उन्होंने हमें काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल में हमें एक प्लेटफॉर्म, एक पुलिसों के कलाकारों के लिए हमें एक प्रोत्साहन दिए, और तब से लेके आज तक हमें काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल हमें एक स्टॉल देते हैं, वहाँ हम लोग जो बॉम्बे में कलाकार है पुलिस स्टोर, तो हम लोग उधर शो करते हैं। बहुत से लोग आते हैं, फॉरेनर लोग वगैरह लाइक करते हैं हमें। बहुत से मैंने पुलिस काम आ रहा अलग काम, और उससे समय निकाल के हम लोग पेंटिंग करते हैं, उसमें हम सेटिस्फेक्शन और इंटरनल सेटिस्फेक्शन हमें वहाँ से मिलता है। और अभी तो फुल हमें रिटायर हो गया, तो हमें हाँ, तो हम उसके लिए अभी ज़्यादा हमें समय देते। मुंबई से हूँ और काफ़ी सालों से ये सहयोग टीम से जुड़ा हुआ हूँ। सहयोग एक न्यू कमर आर्टिस्ट के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, और कला क्षेत्र में और सोसाइटी के लिए भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग। इनके ये 10वीं प्रदर्शनी है, और इसके पहले भी सहयोग के द्वारा जैसे कैंसर पीड़ितों के लिए एक हेल्प हो सके आर्ट के द्वारा, तो ऐसे स्टेजेस पे उन्होंने काम किया हुआ है। इनके साथ मैं काफ़ी सालों से जुड़ा हुआ हूँ, और इस प्रदर्शनी में भी मेरे कुछ पेंटिंग्स यहाँ पे लगे हुए जो मेट्रो सिटी और जो बढ़ता हुआ जो सिटी का माहौल है, लेकिन उसमें भी अलग अलग मौसम के अलग अलग जो ब्यूटी होती है उसको मैंने पेंट करने की कोशिश की है। भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, मेट्रो सिटी है, लेकिन उसमें भी पेंटिंग देखते हुए आपको सुकून महसूस हो सकता है। तो इस तरीके से सोचते हुए मैंने कुछ पेंटिंग बनाए हुए हैं जो यहाँ पे काफ़ी लोगों को पसंद भी आ रहा है। आर्टिस्ट के लिए भी अच्छा प्लेटफॉर्म है, और आर्ट के द्वारा सोसाइटी को जुड़ने की एक अच्छी कोशिश है यहाँ पे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मुंबई से हूँ और काफ़ी सालों से ये सहयोग टीम से जुड़ा हुआ हूँ। सहयोग एक न्यू कमर आर्टिस्ट के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, और कला क्षेत्र में और सोसाइटी के लिए भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग। इनके ये 10वीं प्रदर्शनी है, और इसके पहले भी सहयोग के द्वारा जैसे कैंसर पीड़ितों के लिए एक हेल्प हो सके आर्ट के द्वारा, तो ऐसे स्टेजेस पे उन्होंने काम किया हुआ है। इनके साथ मैं काफ़ी सालों से जुड़ा हुआ हूँ, और इस प्रदर्शनी में भी मेरे कुछ पेंटिंग्स यहाँ पे लगे हुए जो मेट्रो सिटी और जो बढ़ता हुआ जो सिटी का माहौल है, लेकिन उसमें भी अलग अलग मौसम के अलग अलग जो ब्यूटी होती है उसको मैंने पेंट करने की कोशिश की है। भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, मेट्रो सिटी है, लेकिन उसमें भी पेंटिंग देखते हुए आपको सुकून महसूस हो सकता है। तो इस तरीके से सोचते हुए मैंने कुछ पेंटिंग बनाए हुए हैं जो यहाँ पे काफ़ी लोगों को पसंद भी आ रहा है। आर्टिस्ट के लिए भी अच्छा प्लेटफॉर्म है, और आर्ट के द्वारा सोसाइटी को जुड़ने की एक अच्छी कोशिश है यहाँ पे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। And I've been associated with Sahyog since 2020, and I think this is one amazing platform that we artists have been blessed with, and with every year Sahyog has been growing in its viewership, also in its reach, and also in the amazing NGOs that we continue to support. This year we enter our 10th edition, which is
remarkable and commendable that we have been consistent with our art and also its reach. This year, making it very special with its collaboration with the police force, with the civil servants services, and also with the legal fraternity. So this makes it a very different show altogether, because we are including people who are in extremely demanding jobs and who have the patience and love for art as well. So Sahyog has really given us much more than what we have been able to give this platform, and really grateful to Rani sir, whose consistent efforts pay beautifully every year, and it has helped in every artist's growth as a personal journey as well. And I would be very grateful also to the media team, that's Nandini and Nikhil and all of you all, who cover our show so well, and the coverage and also the reach is amazing. So thank you for all your consistent efforts. And yes, so please do come and support the cause, as we are part of the proceeds are going to be supporting the Mumbai Welfare Association. So let's do our bit for our civil servants who are always consistent, and their resilience is always fully there for us. So I hope to see you all at our show soon. Thank you. मैं PSI लवंदे मैं PSI लवंदे नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ANTF। मैं सत्येंद्र का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मुझे पेंटिंग के लिए मेरा पेंटिंग देख के उन्हें मुझे पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाया, और उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उसने जो मेरा जो आर्ट देख के मुझे इधर पेंटिंग करने के लिए बुलाया, उसका तहे दिल से धन्यवाद। अनंत धूपकर, पुलिस सब इंस्पेक्टर, रिटायर 1920 से। अभी फ़िलहाल मैंने पहले से हमें हॉबी पेंटिंग्स वगैरह करते थे, और इस डिपार्टमेंट में भर्ती होने के बाद वो हमारा टेक्निकल में जॉब था मेरा, वेपन वगैरह रिपेयर एडजस्टमेंट वगैरह, तो उसमें मुझे समय संडे वगैरह छुट्टी हो रही थी, तो हम लोग आउटिंग के लिए जाते थे संस्कार भारती करके शो में। तो वहाँ जाके एक संडे क्योंकि पहले से हमें उसके शौक था, तो उधर जाके हमने आउटिंग में थोड़ा सा हमारा एक काम पुलिस टेक्निकल जॉब हमारा और ये आर्ट डिफरेंट, तो उसमें से हमें सेटिस्फेक्शन मिलता था संडे जाके हमें। और वहाँ जाके हमने फर्स्ट एग्जीबिशन मेरा शो हो गया हमारा RR पाटिल जब कमिश्नर थे, तो मैंने जितने सारे पेंटिंग किए थे हम लोग, तो उनका शो मेरा फर्स्ट 1994 में हमारा शो हो गया। RR पाटिल आए थे, कमिश्नर रॉय साहब थे, तो उन्होंने हमें प्रोत्साहन। उसके बाद हमें अपने शिवानंद कमिश्नर साहब थे, उन्होंने हमें काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल में हमें एक प्लेटफॉर्म, एक पुलिसों के कलाकारों के लिए हमें एक प्रोत्साहन दिए, और तब से लेके आज तक हमें काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल हमें एक स्टॉल देते हैं। वहाँ हम लोग जो बॉम्बे में कलाकार है पुलिस स्टोर, तो हम लोग उधर शो करते हैं। बहुत से लोग आते हैं, फॉरेनर लोग वगैरह लाइक करते हैं हमें। बहुत से मैंने पुलिस काम आ रहा अलग काम, और उससे समय निकाल के हम लोग पेंटिंग करते हैं, उसमें हम सेटिस्फेक्शन और इंटरनल सेटिस्फेक्शन हमें वहाँ से मिलता है। और अभी तो फुल हमें रिटायर हो गया, तो तो हम उसके लिए अभी ज़्यादा हमें समय देते हैं। Very happy to be a part of the 10th edition of the Sahyog exhibition. I remember when he was planning the first edition and he was talking to me about it. So I told him we must look at sponsorships and look at publicity, and he was very keen to bring in not just the established artists but even new unknown names, because he said we need to create a platform that's inclusive. And I remember from the very first show we supported Toy Bank
from, and there's never been any looking back. Every year there has been a cause that we've supported, and so many artists have got a wonderful break after this. There have been times when a few established artists were not very comfortable about being featured with unknown names, but his conviction was so strong that we need an inclusive platform, and I think that's what Sayog is. And congratulations to Sayog, to Satyendra Rane, to Smita Rane, and all the participating artists to be a part of the 10th edition, and to all who've been a part of the journey also. It's lovely to be here. Thank you so much. Thank you.